जैसे ही रात को बहुत लगता था भूख लगी है तो मैं कहती थी आइसक्रीम दे दो। आई डायग्नोज फर्स्ट स्टेज कैंसर। There was a time in your life जब आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड उस समय सर भी जेल में थे। I ran from pillar to post। वहाँ पे उनका बैंक था, वो अटेंडेंस लगाने गई थी और बाहर इंसिडेंट होता है जब, एंड फिर किसी ने भी चैलेंज कर देना ना तो ये नवजोत कौर तो तैयार ही है। अगर आपने मुझे ऐसे ट्रीट करना है कि मैं मिसेस नवजोत सिद्धू हूं तो मैं नहीं आ रही। आपने मुझे कंटेस्टेंट की तरह लेना है तो आई मिनट। Today on the Nari First stage, we are not just welcoming a guest, we are celebrating a living example of मैं नारी हूँ, असली खूबसूरत बेखौफ। She is not just known as a wife of a celebrity, Mr. Navjot Singh Sidhu. She is a doctor, a leader, a mother, and above all, a warrior in her own right. Mrs. Navjot Kaur Sidhu faced one of the life's toughest battles, cancer. But instead of letting it define her, she chose courage over fear, faith over doubt, and strength over surrender. Asli, because she shows us that real beauty comes from resilience. Khoobsurat, because grace shines brightest in difficult times. Bekhauf, because she stood fearless in the face of adversity. So please welcome, with love and power, Mrs. Navjot Kaur Sidhu. थैंक यू। So welcome ma'am. नारी फर्स्ट के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो मैम, सारी लेडीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम सबको पता है यू आर अ वाइफ ऑफ अ वेरी फेमस सेलिब्रिटी मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू, बट हु इज़ मिसेस नवजोत कौर? I myself am a celebrity. I'm a child of God, Vaheguru Ji, because the first person I related to in my life was Vaheguru. My father was an army officer, disciplined life, and I could easily find out myself. Like, I'm a doctor, okay, I'm treating people and I'm being paid for it. No, it is about doing something else. No, because this is belongingness. What you are reflects on your face. You really don't need to do anything. You just need to be a good human being with shine in your eyes so that you connect with people. So I was an independent soul, ready to do anything, jump from anywhere, not scared of anyone, very naughty child, but very happy to help others. So then I understood that I love to heal people. Then I thought, okay, I have to become a doctor. Because that's the best healing. Next to God, who's the healer? और सबसे पहले ये देखो, अपने आप के लिए कितना टाइम दिया, खुद के लिए क्या किया। तो एंड ऑफ द डे यू, आजकल की लेडीज खाना बनाते रहे लोगों के, अपने लिए टाइम ही नहीं है खाने का। नो वंस बॉदर्ड हु इज कमिंग टू यू एंड आस्किंग यू आपने खाया कि नहीं। नो वंस वांटिंग। बच्चों को देखेंगे, हस्बैंड को देखें, बीमार भी होंगी किचन में लग जाएंगी। मतलब हु इज एक्चुअली डूइंग, उनका फर्ज नहीं है कि अगर एक दिन आपसे कुछ नहीं हो रहा तो वो खुद बनाए। तो ये तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जब तक एक म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप है उतने में रहो। तो जो अपने आप पे वर्क करना है, प्लीज़ पहले अपने आप पे वर्क करो, अपनी पहचान करो। ये देखो कि जो काम आप कर रहे हो उससे आप खुश हो कि नहीं। यू आर वॉट यू आर, यू आर नॉट वॉट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। आई एम नॉट डिफाइंड बाय वॉट यू कॉल मी, आई एम डिफाइंड बाय वॉट आई एम, वॉट आई डू इन माई लाइफ। Am I sincere to people? Do I love people? Do I love God's creation? So नवजोत कौर का बचपन कैसे गया? बहुत शरारती, discipline. You were from the army family. Army Your family. Dad was I was an acting colonel when I was in class 1, and very naughty, and but was brought up under such discipline. 5 बजे सुबह दरी बिछ जाती थी. I had to do yoga. एंड वी हैड गुरु ग्रंथ साहब जी इन हाउस। सो खाने से पहले पाठ करना है, अरदास सुननी है। सो एक पैर आगे एक पैर पीछे। सो आई वॉज कनेक्टेड टू गुरु नानक देव जी, इन अ वे आई वुड टॉक टू हिम। एंड फिर किसी ने भी चैलेंज कर देना ना तो ये नवजोत कौर तो तैयार ही है, भाई छलांग मारनी है तीसरी मंजिल से, अरे नीचे उतर के आना है, क्या है क्या, मतलब निडर, बिल्कुल निडर और बिल्कुल ही अपफ्रंट। आई डिडंट वांट टू स्टडी, career is more important and imagine than I didn't want to marriage. study. But I wanted to become a doctor, so I had to study to become a doctor. So at that time also, I'm talking about 35 years back, your dad had a very forward thinking कि गर्ल्स को पढ़ाओ, एजुकेट करो। अरे उससे पहले मेरे नाना जी, दादा जी,
माय नाना जी वाज अ डॉक्टर, माय दादाजी वाज अ डॉक्टर. मतलब 90 years ago, 100 years ago की मैं बात कर रही हूँ. तब हमारे घर के बच्चे, उनको सिखाया गया था कि आपको पढ़ना है और कुछ करना है. In spite of having इतने खेत, इतने वो, and there was no difference between a girl and a boy. That was the best part. Very nice. अगर गर्ल इंटेलिजेंट है तो उस पर फोकस होगा. फिर बॉय को कहा जाता था तो कोई कैसा घर का काम देख ले, कोई और काम देख ले. So आपका जो कॉन्फिडेंस है ये आपके पेरेंट्स से ही आपके अंदर आया है. हाँ, yes, my compassionate nature, my kind mother, very kind, very beautiful. कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है. उनको होता है कि बेटा अपना काम करी चलो, कोई टाइम नहीं है किसी को क्रिटिसाइज़ करो, देखो ये करो. खुद के लिए मतलब हर चीज़ में शी वुड कीप डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीवन. जो बंदा खाना बनाता है आपके घर का ना, उसके अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो आपके खाने में जाती है. तो तभी हम लोग भी बोलते हैं कि अगर आप बीमार हो तो खाना मत बनाओ. हाँ, या अगर आपके मूड खराब है या तो गाली देके किसी को खाना बना रहे हो, बिकॉज वो सेम फीलिंग्स आप उस खाने में डाल रहे हो और वो किसी और के पेट में जा रहे हैं. तो तभी दादी नानी तब क्यों बनाते थे खाना so खुद, बिकॉज सिर ढक के वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम, वो खाना नहीं दे रहे थे. With gratitude, हाँ, with वो humility, अपने yes, yeah. वाहिगुरु सतनाम, और वो कभी खाना कमी नहीं होता था. So आप MBBS कर रहे थे तो आप सर से कैसे मिले? पूछो ना. आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मतलब ये बंदा ना, मैं अभी MBBS पूरी की थी, इंटर्नशिप कर रही थी. तो MBBS के ड्यूरिंग तो दौरान तो तुम इतने पढ़ाई में बिजी थे कि जब डॉक्टरी की होती है वो तो 10 साल आपके इतनी मुश्किल होती है कि बंदा ना खब्बे ना सज्जे देखे. बंदे को घर दिख रहा होता है कि मैं कुछ खाऊं, फिर मैंने पढ़ाई करनी है, फिर मैंने सुबह कॉलेज आना है. जैसे ही मेरा फाइनल ईयर MBBS ख़त्म होता है तो मैं और मामा ना 22 नंबर फाटक वहाँ पे वॉक करते थे कि मामा ने साथ में वेजिटेबल्स फ्रूट्स ले लेनी, मैंने कुछ ले लेना अपना. इंटर्नशिप इज़ अ लिटिल लाइट बिकॉज एंड देन यू हैव अ ग्रेट फीलिंग दैट हम डॉक्टर बन गए हैं, एंड देन यू गो विद दिस या ओके. एंड तो ये बंदा निकल रहा था अपने 3-4 दोस्तों के साथ. तो उसने देख के इतनी ज़ोर से ब्रेक मारी ना, पीछे वाले लड़के सबके बुत्थे गाड़ी में लगे. कहते क्या हुआ क्या हुआ? कहते यार देख कुड़ी की नहीं सोनी. मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर बंदे ने मेरा पीछे ही नहीं छोड़ा. यही नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आई है, पीछे पड़ गया. मुझे तो गुस्सा. फिर ऐसे ऐसे पता चला कि ये तो कोई क्रिकेट, अभी तो इनिशियल लेवल रणजी ट्रॉफी थी, अभी तो कोई ये भी नहीं था कि इंडिया के लिए खेल रहा है. सो मैंने कहा कि तो पीछे पड़ गया, BA पास मैं की करना है. मतलब मेरी तो जाती नहीं बिल्कुल भी हो, तो पीछे 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 आई जाए. बड़ा तंग किया इसने 2-3 साल. एक बार फिर अचानक वी हैड अ बैच ऑफ 10 people. So there were 6 boys and 4 girls. So we the batch A1, the toppers का बैच था हमारा, ऑल डॉक्टर्स के बच्चे. और वो उसमें एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में से लड़का आया हुआ था. तो वो क्रिकेटर था अंडर 19, उसने नवजोत के साथ खेली थी. तो हम में 10 का था, जो भी टॉप करेगा उसके घर पार्टी है, या जिसका भी बर्थडे है उसके घर पार्टी है. तो उसकी पार्टी में हम 10 थे और ये 11वां बंदा आ गया. तो तब बिल्कुल ही ये हो गया ना कि एक तो था कि पीछे पीछे आ रहा है, एक हो गया यार सामने ही आ गया. तो फिर सामने से थोड़ा डिसेंट भी लगा कि यार ये तो बंदा तो बड़ा साउज है, आँख ही नहीं ऊपर कर रहा. मैं क्या, और फिर पता चला ये तो अल्कोहल को हाथ नहीं लगाता, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, 4 बजे उठ के ये करता है. क्या बंदा तो अपने टाइप का है ये. मतलब दैट वाज की लाइफ नहीं है, गुंडा टाइप नहीं है ये तो. मतलब ये तो बड़ा सीरियस काइंड का बंदा है. तो मतलब इतना डिसिप्लिन होना कि पटियाला से खेलना फॉर ऑल इंडिया, वेरी वेरी टफ. इतनी प्रैक्टिस करता है सारा दिन, और मतलब उसके सिवाय कुछ और करता ही नहीं है. तो कहते पता नहीं आपके पीछे कैसे पड़ गया, इसके पास तो टाइम ही नहीं है लड़कियों के लिए. तो देन वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑन समथिंग. जैसे 10 जाने थे, बात शुरू हो गई. मैं कहते जो बातें शुरू होने की देर है, घंटा हम ही बोलते रहे, बाकी तो हम भूल ही गए कि बाकी 9 बंदे कहाँ हैं. 10वां वैसे आप और सर अगर मिल जाओ, मुझे लगता है और कोई बोल ही नहीं सकता जब तक हमारी लड़ाई ना हो जाए. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वी हैव. सो आपके पेरेंट्स नहीं माने सर के लिए, बट आपको वो बिलीव थी कि सर इज़ द राइट पार्टनर फॉर मी. जो मेरा मेन कंसर्न था ना वो कि मैं ना ज़िंदगी में जो लोग अल्कोहल पीते हैं या इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे घर में अलाउड नहीं थी. माई डैड वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. अभी 88 वर्ल्ड कप भी नहीं खेले थे. सो पर एक वो तो होता है कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरा नाम है, रिप्रेजेंट इंडिया. हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. और मैं plus he was a disciplined because sports is not easy, you have to be disciplined. Exactly. So that clicked immediately. एक रिलेशनशिप आगे तभी बढ़ सकती है when you are very very comfortable. और वो जैसे होता है ना buddies, we are like friends. We are like हम सोचते नहीं कुछ भी बोलने से पहले. Best of friends. There is nothing I need to hide from him. क्योंकि मैंने उस बंदे से कुछ छुपाना ही नहीं है.
मतलब दैट इज, एंड उसको भी यही है कि वो जो है वो है, हमने एक दूसरे से अगर छुपा लिया एंड दैट, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, बट एक दूसरे रह से नहीं सकते कन्फ्रंट करके ये है। अरे लड़ाई तो रह ही नहीं सकते, बस ऐसे देखते हैं वो बुलाएगा मैं बुलाऊंगी। आपको कभी भी थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी नहीं हो- होती बिकॉज ऑफ हिज सेलिब्रिटी स्टेटस? वो हो ही नहीं सकती। सिद्धू सर वैसे भी ही हैज सच अ गुड कमांड ओवर Language. लैंग्वेज, तो जब वो बोलते हैं ना स्पॉन्टेनिटी से, मतलब यू फील अट्रैक्टेड टू हिम। Yeah. यार ही इज सच अ नाइस स्पीकर एंड यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर। वी लव लिसनिंग टू हिम, हमारे खुद के गूज पिंपल्स हो जाते हैं। हमें जब स्टोरीज बताते हैं मेरे खुद के गूज पिंपल्स हो रहे होते हैं, बिकॉज इतनी अमेजिंग स्टोरीज बताते हैं रामायण से, महाभारत से या पुराने, तो ऐसे लगता है तुम पुराने युग में पहुंच गए हो। तो उनको जो अटेंशन मिलती है, आपको कभी उससे नहीं लगता कि No way. आई फील इनसिक्योर? No. और व्हाई आर गर्ल्स लुकिंग एट माय हस्बैंड? नहीं, आई फील मैं उनको चिढ़ाने के लिए जो मर्जी हाँ, कह दूं, पर मतलब मैं जान के मैं चिढ़ाती बहुत हूँ। हाँ। बड़ी मलाइका को, बड़ी उनको बड़े अच्छे शेर व शायरी निकल रही थी, मेरे लिए तो कभी आई नहीं। कहते अरे वो तो काम है मेरा, है ना। तो जोत मैम, आपकी लाइफ लगता है सब लोगों को देख के कि कितनी एंटरटेनिंग है, एंड लुक शी हैज़ एवरीथिंग, एंड हस्बैंड इतने अच्छे हैं, एंड ही इज़ डूइंग सो, यू आर डूइंग सो वेल, बट टेल मी, देयर वाज अ टाइम इन योर लाइफ जब आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड उस समय सर भी जेल में थे। सो वो टाइम मैं तब सोचती हूँ, मैंने कहा आपने कैसे गुजारा होगा? मतलब किसी को अगर बोले यार कि आपको कैंसर हो गया, पहले तो वो जो धक्का एक वो अब्जॉर्ब करना है कि यार मुझे, मी बीइंग अ डॉक्टर, मी बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, एंड देन एट द सेम टाइम फैमिली में इतनी स्ट्रेस चल रहा है विद योर हस्बैंड बीइंग इन द जेल, तो वो फेस कैसा था? थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? दैट वाज अ वेरी awful phase because कौन से साल की बात है? 2022 अच्छा। में हुआ था ये। एंड इमेजिन हम दोनों यहाँ बैठे हैं और वहाँ कोने पे कोई बंदा मर जाता है किसी और के साथ कोई लड़ाई के कारण, और तुम्हें जस्ट बिकॉज यूर नो नेम तुम्हें जेल हो जाती है कि तुमने उस बंदे को मार दिया। पर सेलिब्रिटी पीपल नो हाँ, यू, तो वहाँ पे बस एक ही बंदा वो जानते हैं। वो हाँ। बात मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुई। सो आई रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो देन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कि यार सुनो तो सही, कही मेरी बात तो सुनो, उसने नहीं हाथ लगाया, आप क्यों उसको पनिश कर रहे हो? सो आई वेंट टू एवरीवन विद द प्रूफ, एंड दैट आई हैड अ प्रूफ जिसमें जो बंदा मरा था, पटियाले की बात है, शेरा वाला गेट, वहाँ पे उनका बैंक था, वो अटेंडेंस लगाने गए थे और बाहर इंसिडेंट होता है। जब बाहर आते कहते क्या हुआ वो कहते सिद्धू साहब आप चलो कि कुछ हो गया यहाँ पे भी, आपका नाम वही हो गया कि आपका नाम आ गया। तब ये था कि नवजोत सिद्धू के पास पैसे होंगे या 4 पैसे कमा लेंगे। इस बात पे शुरू हुई जो लेटर ऑन पॉलिटिशियंस ने उठा ली कि अरे यार ये तो इतना ईमानदार है, इसको कैसे पकड़ेंगे? तो इसको पकड़ने के लिए इसका केस जिंदा रखें, क्योंकि तब उस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हम छोटे थे, छोटा सा बेटा था मेरा, तो हम भाग गए धुरी। एंड तब उस लड़के ने बयान दिया बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर आके, जब वो सीएम थे, कि ये नवजोत सिद्धू ने मेरे पापा को हाथ भी नहीं लगाया, आप अपने पॉलिटिकल रीजंस के कारण इसको फंसा रहे हो, आप सिर्फ ऐसे करो, हम केस को क्लोज डाउन करना चाहते हैं, आप इसको, तब नवजोत वाज अ मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट, आप हमारे घर आ जाओ, हमारे साथ चाय पी लो, पिंड में हमारी एक इज्जत है, तो ये हमारे साथ चाय पी लेंगे तो हम कह देंगे भी हमने केस क्लोज कर दिया। तो इन्होंने केस ही नहीं क्लोज होने दिया, ना तो वो दिन आया जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चाय भी नहीं आए, तो इनको अंदर कर दिया। बट आई हैड दैट पेन ड्राइव जिसमें ये रिकॉर्ड हुई थी किसी मिनिस्टर के घर, जिसमें ये सारी स्टोरी, ये सारी कॉन्वर्सेशन रिपीट हुई थी। उसको मैंने ऊपर से लेके नीचे तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, सबको दी। पेन ड्राइव ही नहीं पड़ी किसी ने। सो आई वाज सो शॉक्ड। 5-6 महीने घूमने के बाद मेरा गला बंद हो गया, चोक हो गया। तो जैसे ही रात को बहुत लगता था भूख लगी है, तो मैं कहती थी आइसक्रीम दे दो। आई डायग्नोज्ड फर्स्ट स्टेज कैंसर। एंड यू बीइंग अ डॉक्टर आई कुड डायग्नोज इट। आई डायग्नोज इट, हाँ, फर्स्ट स्टेज, इतनी सी गटोली, और इमीडिएट जाके कुछ नहीं करना था, इमीडिएटली जाके निकलवा देनी थी और ठीक हो जाना था। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बस ये ईगो, एक तो ये कि नवजोत को बाहर निकाल लें, वो बाहर आके मुझे लेके जाए, मेरी कराएं, मैं अकेली कहाँ जाऊँ। रियल ब्रदर बैठा रहा, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने जाना ही नहीं। उनको पता नहीं था, मेरी एक ज़िद थी। अब मेरी एक किसी को नहीं पता, मेरे बच्चों को भी नहीं पता अभी ये क्या ज़िद थी। तो नवजोत वॉज वेरी इमेच्योर एट मनी हैंडलिंग।
मतलब उनको ये था कि यहाँ से आ गया 5 करोड़ आ गया, ये भी नहीं सोचना टैक्स भरना है, ये करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आज सडनली डिसाइड कर लिया मैंने एक घर बनाना है, मैंने तो अमृतसर में बहुत बड़ा घर बनाना है। उस घर में उसने जितना पैसा आया उसमें लगा दिया, सेविंग ज़ीरो। बाद में पॉलिटिक्स आ गई, जब पॉलिटिक्स आ गई टीवी बंद हो गया, पैसे तो बंद हो गए। जो बंदा दिन के 10-15 लाख कमा रहा है, कभी 25 लाख कमा रहा है, वो बंदा 1.5 लाख रुपए महीने पे आ गया। तो मेरा जो जमा किया हुआ पैसा था वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद ये जेल हो गई, तो ये तो बिल्कुल ही ठुप्पी हो गया। और क्योंकि 25 में वो गए हैं दोबारा टीवी में, तब तक अभी तक उनके अकाउंट्स बंद किए हुए थे। जो मेरे बाप ने कही थी कि ये पैसे जोड़ के रखने हैं, इनको अपने उसके लिए चाहिए, तो मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा आज मैंने इलाज नहीं करा। आपने कैंसर का इलाज नहीं करा? मैं कहा मैंने नहीं कराना। और आपने घर में सबको पता था आपको कैंसर? किसी को बताया ही नहीं होगा किसी को? ना, बच्चों को भी नहीं बताया, ये नहीं बताया जब तक उनको थोड़ा थोड़ा हुआ, क्योंकि वो स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा था। तो तब 5-6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद टेस्ट शुरू कराए, जब मैंने फील कर लिया कि वो भी इसलिए कि वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग गया। बट आई नीड टू टीच दिस गाय अ लेसन। चाहे उसमें मेरी हेल्थ, मेरी जान, कोई फर्क ना, कुछ नहीं, परवाह ही नहीं था। मैंने कहा इस बंदे को बस मैंने अकल सिखानी है कि ये बंदा पहले सोच के रखे कि लाइफ में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। तुम पहले 10 रुपये कमाओ, उसमें से 30 रुपये 70 रुपये सेव करो, 30 रुपये खर्चो। तो मेरी वो जिद के कारण बहुत आगे चले गया। साल तक जिद की मैंने। इट वेंट टू 4th stage and then he started crying. Then the kids started crying. Everyone, he started crying कि we don't know how to live without you. And then he worked so hard on me. मतलब मुझे बोला था 4 weeks मिले हैं, इसकी नोट्स पूरी चली गई हैं, फिर सेकंड सर्जरी हुई, फिर थर्ड हुई, मतलब फिर कहीं ना कहीं से आ जाए, इतना स्प्रेड हो गया। फिर इसको तो चढ़ गई कि अब इसके कैंसर सेल बॉडी में मारने कैसे। अपने इसके ऊपर खुद रिसर्च करी, खुद स्टडी किया, कैसे? आई वॉज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो हम बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा में मैं इसलिए थी क्योंकि घर में भी स्पाइसेस हम बहुत बचपन से बेजी वगैरह यूज़ करते थे हमारे घर में, तो इज़ वेरी सात्विक फूड। जब कैंसर आ गया तो फिर नवजोत ने तो कैंसर सेल का पीछे ही नहीं छोड़ा, उसने तो सब कुछ ही पकड़ लिया, पानी से लेके कहाँ तक। इतनी पढ़ाई हम दोनों ने की कि कैंसर सेल्स कैसे बॉडी में सर्वाइव नहीं करेंगी। So ultimately, with whole treatment, because without treatment you are nothing. If you say diet कर लो, नहीं। आपने कीमो भी कराई, आपने सारा कुछ कराना है। आप पहले आज से वो लाइफस्टाइल फॉलो कर लो तो आपको कैंसर नहीं होगा। जब मेरी डॉक्टर्स की पूरी ट्रीटमेंट साथ के साथ, अब भी इम्यूनोथेरेपी देते हैं, अभी भी चल रही है, you know, they are like कि आपको डिसिप्लिन भी होना चाहिए। हाँ पूरा। But then in that process I have really learned a lot. And I want to share everything of mine with people who are suffering. और हम लोग ये कई बार क्या करते हैं, अपनी हेल्थ निगलेक्ट करते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। हाँ। और मुझे लग रहा है आपसे ज़्यादा लेडीज़ में कोई बिजी नहीं हो सकता। जिस तरह आपने मेरे को शेड्यूल बताया अपना कि हम लोग घर घर जाके रैली में जाना, ये करना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं हर दिन लगी रहती हूँ। वर्किंग द होल डे। एंड जो आपने कैलेंडर बताया था, मैं ट्रैवल इतना करती हूँ, बट दैट डजंट मीन यू निगलेक्ट योर लाइफ। अब जैसे आपको कहीं पे भी आपका खाना मिल सकता है, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग माइंडफुल कि मैं क्या खा रही हूँ, एंड यू कैरी अलोंग थिंग्स, फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। अगर तुम्हें बॉईल नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, यार पानी में बॉईल कोई कर देगा। नहीं हो रही, तुम खुद जाके खरीद लो, कच्ची खा लो। नहीं, वो हमने भी नारी फर्स्ट में, मैम, वन थिंग व्हिच स्टॉप्स वुमेन फ्रॉम अचीविंग इज हेल्थ। कितनी बार होता है कि जब अभी इवेंट होना है, आना है, 10-15 लेडीज़, और क्या हुआ, मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, सडनली किसी के घर में कैंसर है। हर एक इंसान के ईदर शी और somebody very close to her family, one person in the house is suffering from cancer, and no one in the house wants her to leave. और वो कैंसर जो होता है ना, वो एक को नहीं होता, पूरे घर को खा जाता है। क्योंकि आप यही देखते रहते हो कि मम्मी ठीक है, सुबह से लेकर रात तक उसी को देखना है, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, ये खाना डाइजेस्ट हो गया, मतलब आप हर रोज बस यही देखते हो, आपकी सबकी आंखें उन्हीं पे होती हैं। अब मेरी डाइट है जो मेरे हस्बैंड फॉलो करते हैं, he has the same food as mine because he knows it's doing good. So this diet is actually good for not having inflammatory cells, for not getting your liver spoiled, for not getting your kidneys spoiled, which happen with age. ना blood pressure हो, ना sugar हो, मतलब you are allergic to wheat. Important women को अपने चेकअप कराने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मैं तो कह रही हूँ जैसे आधार कार्ड से हेल्थ कार्ड लिंक कर दो, और ये तो मैंडेटरी कर दो, मैंडेटरी करो कि हर लेडी को एवरी 6 months चेकअप कराना ही कराना है, और मेन को भी कराना है।
अगर तुम टाइमली अपना चेकअप करा के अपने आप को हील नहीं कर रहे, जबकि सब कुछ अवेलेबल है। मतलब मुझे उनको ये बताना है कि तुम कैंसर से दूर रह सकते हो, बहुत अर्ली डायग्नोसिस करवा सकते हो, उसमें बिल्कुल भी ट्रीटमेंट बिल्कुल ही सस्ती है, कहीं भी हो जाएगी। आपको क्या खाना है, आपको क्या पानी पीना है। सो आई एम लॉन्चिंग अ ब्रांड कॉल्ड सत्वा। So we are starting from gut cleansing, liver cleansing. So this is all linked. Then I'm the brand ambassador in India for cancer care. So we have pre-cancer diagnosis free of cost. एजुकेटेड लेडीज भी होती हैं जो अगर कोई वो प्रॉब्लम भी मानने नहीं जाती। यूटीआई होगा या ब्रेस्ट में दर्द होगी, दे विल जस्ट कीप क्वाइट अनलेस इट इज अनबेरेबल। अब पेरेंट्स नहीं बताते, पता नहीं क्यों इसको छुपा के हाँ कि हाय डॉक्टर के पास जाना मेरे को लगता पड़ेगा। है जितना जल्दी आप बताओगे उतना जल्दी डिटेक्ट होगा, उसका क्योर होगा। तो Then बोलते हैं ना you- एक हाँ। एज के बाद लेडीज का एक पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप है। योगा करो, आप डांस करो, आप कुछ करो। मेकअप का कोर्स हाँ। करो, कुछ भी। कुछ बट भी। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर yeah, माइंड ऑक्यूपाइड। mind चाहे occupied। आपके हस्बैंड बहुत रिच हैं, कुछ भी है। फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बट वन वो जितना rich है उसके पास व्हिच यू कैन उतना- कन्वर्ट हाँ। इनटू अ प्रोफेशन, वो तो और भी अच्छी बात है कि बिल्कुल। दिस इज समथिंग आई एंजॉय। मैं Yeah. मतलब उठती इस थॉट के साथ हूँ कि मैं ये करूंगी। मैं करूँगी। मतलब सुबह उठने के लिए एक रीजन चाहिए। एग्जैक्टली। और चलो कोई भी छोटा होगा कि आज मैंने स्ट्रे डॉग्स को खाना देना है पूरे दिन, मेरा ये मिशन है। हाँ, ब्लाइंड को खाना खिलाना है, मैंने आज But जाना है, something with या your मैंने mind घूमने है। जाना है, मैंने जू जाना है, एनिमल्स देखने हैं, मतलब कुछ भी करना है, पर कुछ करना है। एंड जितने अमीर लोग हैं उतने ही तुम डिस्टेंट हो। सो मैम ये बहुत ही सुंदर जगह है पंजाब भवन, आप पहले से आते हैं यहाँ पे? हाँ, हमेशा वी स्टे देयर। एक्चुअली हमारा घर भी था कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में, बट नॉर्मली कोई मीटिंग्स होती हैं, कुछ भी होते हैं, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट प्लेस टू स्टे। एंड यहाँ का गार्डन वगैरह आप थोड़ा उठ के चलो, बातें yeah, करते हैं, yeah, आप let's थोड़ा go. दिखाओ मुझे। या श्योर। तो आपने नारी फर्स्ट का प्लेटफॉर्म कैसे चुना एंड वो सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगी? अरे यू जस्ट अपेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो आपका ना जो बड़ा कैचिंग था कि नारी फर्स्ट, इसमें इट वाज नॉट जस्ट अबाउट Physical आउटर ब्यूटी, attribute, हाँ, सो इट हाँ। वाज अबाउट योर इनर ब्यूटी। Yes. तो मैंने कहा यार इसमें तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, मुझे जाना ही जाना है आपने ये भी नहीं बताया कि मैं आप- कौन हूँ। हाँ। और फिर मैंने आपको भी बोला, मैंने कहा देखो अगर आपने मुझे ऐसे ट्रीट करना है कि मैं मिसेस नवजोत सिद्धू हूँ तो मैं नहीं आ रही, आपने मुझे कंटेस्टेंट की तरह लेना है तो आई मिनट। सो खुद को पहचानो, खुद को जानो, अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि ना तो पास्ट तुम्हारा है ना तो फ्यूचर तुम्हें पता है। तो ये प्रेजेंट मोमेंट जो है ना, ये पल हमारा है, और इस पल में हम चिल करेंगे, we'll be together and we'll support each other, and I'm waiting to meet you all and I'm so excited to be there. So, and we are very excited to have you in Goa with us from 9 to the 12th. And जब हमारे पास नवजोत कौर जैसी लेडीज हैं तो हमें किस ज़माने का सुनना है? अपनी सुनो, अपने आप को खुश रखो. That's all that we want to say on Women's Day.